Today we have gathered here for the celebration of National Technology Day, as you can see on the slides. नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है 11th मई को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है एंड वी हैव प्रोफेसर विशाल with us who will be elaborating more on the relevance of this National Technology Day. So without taking much of your time, I would like to welcome first Professor Vishal, and I would like to invite Namrita and Nitin sir. अभी मुड़ता नहीं हाँ जी उसको कर दियो भाई Now I invite Professor Vishal to go on the stage. Thank you, Dr. Rajiv Puri. A very good morning to all of you, although it's going to be afternoon now. I know it is your practical today, so I won't take much of your time, but it is our duty to celebrate this very important event which just passed in between your exams, that is the National Technology Day. Before going further, I would like to thank Dr. Rajesh Kumar, Principal of the College in absentia, Dr. Rajiv Puri, who is the convener of the IAC of the college, Professor Namrata Kapoor, Professor Gagan Madan, and you all for sparing time to listen to me to celebrate and commemorate this National Technology Day, which is actually happens on 11th May, but today is 15th May, so it is our duty to celebrate it and pay tribute to this particular day on which India was announced on the world stage. So I hope Dr. Puri has already made clear that why it is celebrated. Do you know about No, sir. the National Technology Day? I did not review. As you did not reveal. Anybody who can tell me why we celebrate National Technology Day? So that's why we are celebrating it. And being from technology, in fact all of you are from BCA, and computer and technology go hand in hand. On 11th of May 1998, India announced itself as a powerful, not to be taken lightly, atomic power. We successfully conducted nuclear tests at the Pokhran range in Rajasthan under the able and you may say very powerful leadership of our Prime Minister, who is no more, Mr. Atal Bihari Vajpayee, and the man who played an instrumental role behind this particular National Technology Day was none other than our ex-president, late President Dr. APJ Abdul Kalam. So it needs a big round of applause first of all. Now we are almost say 25 years from that day. We are in 2024 and it happened in 1998. At that particular time our neighbor Pakistan already was a nuclear power. And there is always a threat, a danger poised by it on the borders. So it was the will and intent of our worthy Prime Minister of the country, Atal Bihari Vajpayee ji, to conduct this in isolation. I recently watched a movie on one of the OTT platforms, Main Atal Hoon. I hope some of you might have watched it. So in that particular movie, it was revealed how it actually happened. So it was not even disclosed to United States because people around the world or countries around the world do not want you to be powerful and empowered. So it was conducted. एक और मूवी आई थी मेरे ख्याल में मद्रास कैफे थी जॉन इब्राहिम की, उसमें भी इस पे दिखाया गया था. तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं. इंडिया वॉज अर्लियर कंसिडर्ड ए वेरी सॉफ्ट नेशन. Countries like Pakistan, which have actually say originated from India, they were nuclear powers and we were being threatened by such countries at the behest of other countries around the world, maybe US also. So somehow we managed to conduct the nuclear test at that particular date, and now even China cannot threat us anymore. We present a very iron rod fist to tackle such countries. So without taking much of the time, now how do we relate? Why a computer science student should celebrate National Technology Day?
because time has changed. Time has changed. Can you get something from this image? The first slide, it is about history. 1998, it was Operation Shakti. There are two images showing up on your screen. One was way back, and one is an AI generated image. And aptly, I could find it yesterday night. History meets AI. Now there is a flag of our country with probably a defense vehicle and a soldier, and that blast which took place, which successfully test fired our nuclear capabilities. So earlier power was to protect yourself or to make an attack. Now the power is technology. One who is ruling the technology is ruling the world. It is United States, of course, in terms of technology. If you talk about number one economy, it is still United States. It is the biggest or largest manufacturer of defense weapons, right? Countries like France, we have purchased Rafale from them. But I'm not taking it otherwise. There is no threat as such, but the power now resides in technology, innovation, and education. And fortunately, or you may say that you are also privileged enough that you are a part of this bandwagon. You are into a course called Bachelor of Computer Applications, and now because most of you have already submitted your projects also, you are even more clear about how you can contribute to this growing power. Why India is not being taken lightly. So this is some things to assert why India is a big power now. From Aryabhatta, who was Aryabhatta? He was a great mathematician who invented zero को हम बहुत zero कह देते हैं ना किसी, but zero is very powerful. So Aryabhatta was the man behind the zero, power of 10. हमारी टर्म्स में तो 10 की पावर है ना, जितनी जीरो लगाते जो. अब क्या आ रहा है? AI. तो बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड जस्ट लाइक टू हियर योर रिस्पॉन्स कि आप AI को डू यू ट्रीट इट एज a good technology or a bad technology? Can anybody elaborate on that? Whatever comes to your mind. AI को आप क्या मानते हो? एक threat के एक power? Power. एक आवाज आई है, power. Why? It helps you. How? सर खुद को इम्प्रूव करने के लिए जो चीजें मतलब जिनको देखो करने के लिए स्किल्स चाहिए होती है वो ऐसे हो जाती है. He is quite right. अगर तो हम उसको कॉपी करेंगे, as such यूज करेंगे, तो it is a threat. It will be rule. किसी चीज के को blindly फॉलो करना लग जाओ, तो वो आपको ओवर पावर कर देती है. लेकिन अगर आप उसको यूज करोगे, किस लिए? अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए. यू ऑल्सो हैव इंटेलिजेंस विच इज मच बियॉन्ड दिस AI, नेचुरल इंटेलिजेंस. बट इफ समथिंग इज असिस्टिंग यू in terms of the volume of data already available with it, that technology empowers you to do something even better. So I would consider AI to be a power. क्योंकि अगर हम उसको threat मान लेंगे फिर तो हम पहले ही हारे हुए हैं. क्योंकि there is no way out. Earlier people used to say जब कंप्यूटर आएंगे तो जॉब्स खत्म हो जाएंगी, है ना, तो बंदे की वैल्यू खत्म हो जाएगी. बट कंप्यूटर्स ने तो मेरे को लगता है वैल्यू एडिशन की है. कंप्यूटर्स ने आके हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन की है. हम प्रोडक्टिव हो गए हैं. हम बिल जमा कराने के लिए लाइनों में नहीं लगते. हम ऑनलाइन पेटीएम अमेजोन से पे करके अपना बाकी का टाइम अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर लेते हैं. डोंट यू थिंक सो? बिल जमा कराना किसी टाइम पे बड़ा काम होता था ना, घर पे सुबह ही शुरू हो जाता था रात को ही कि कल बिजली का बिल जमा कराइए, किसी याद है फाइन पे आएगा. आधा दिन बिल जमा कराने में लग जाता. और जब बिल जमा हो जाता था ऐसे लगता था कि जैसे कोई जंग फतेह कर दी है ना, बिल जमा हो गया. साल है कि बंदा पानी पूनी पी के रस्ते च गन्ने का रस पी के घर आता सी कि बिजली का बिल जमा करा.
You were limited to such things. Now you are not. It is just a matter of click, isn't it? So AI should be treated in such a manner that it is going to empower you. Okay? And the buzzword behind it is innovation. Innovation has to be the guiding idea which has to propel to your future towards better days. Try to invent more and more things which are new. और यही हो रहा है, जो आगे हैं हमारे से वो आगे जा ही जा रहे हैं और हम कैचअप जॉब कर रहे हैं. लेकिन अब हमने क्या बनना है, अगर हम आर्यभट्टा, अगर उस टाइम पे आर्यभट्टा जीरो इन्वेंट करके पूरा मैथमेटिक्स को एक तरह से नई डायरेक्शन दे सकते थे तो हम क्यों नहीं दे सकते. वो भी उस टाइम पे रिसोर्सेज शायद अब से भी कम हो, लेकिन स्टिल ही मैनेज्ड टू मेक ए नेम. स्टिल वी आर रिमेंबरिंग हिम ऑन नेशनल टेक्नोलॉजी डे. And you will be very proud to know that India is now at 40th among 132 economies. Innovation index. ये कोई झूठ नहीं. और थर्ड लार्जेस्ट टेक स्टार्टअप बन चुका है इंडिया. आप जैसे बच्चे रोज ही कोई ना कोई नया स्टार्टअप लेके आते हैं. वर्ल्ड में थर्ड. अभी इकोनॉमी थर्ड नहीं हुई, बट स्टार्टअप्स में थर्ड हम आ चुके हैं. तो हमने क्या करना है, एआई सिस्टम बनाने हैं. पहली तो बात, क्यों बनाने हैं? एनीबॉडी क्विकली, फिर आपको फ्री करेंगे. एआई क्यों बनाने हैं सिस्टम? वर्कलोड कम हो जाए. तो बनाने से पहले कुछ सोचोगे? तो वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना. ये तो चलो लाइफ साइकिल है, आपने प्रोजेक्ट में भी किया होगा. प्रॉब्लम स्कोपिंग करना, डाटा एक्वायर करना, डाटा को एक्सप्लोर करना, मॉडल करना और फाइनली उसको इवेल्युएट करना. और ये 4 W's होते हैं जिनका हमें आंसर चाहिए. ऐसे ही नहीं बना देना कुछ. Isn't it? Who? What is who? Who है कि किसको फर्क पड़ेगा इससे. अगर मैं कोई सिस्टम बनाऊंगा एआई का, किसको फर्क. जैसे ड्राइवरलेस कार है, सुनिए क्या है ड्राइवरलेस कार. इट इज एन ऑटोमेटेड वर्जन ऑफ अ कार. ड्राइविंग स्कूल खुले हुए हैं जगह जगह. मैं जाता हूँ घर, कितने लोग ड्राइविंग सीख रहे हैं. अच्छी बात है. सेल्फ आप इंडिपेंडेंट होते हो, आपको ड्राइवर नहीं बुलाना पड़ता, टैक्सी नहीं बुलानी पड़ती. पर ये तो ड्राइवर ही नहीं चाहिए. हाँ, जो लोग नहीं ड्राइव करना चाहते, अब अगर हम बात करें, हमारा भी हम कंट्री बहुत अच्छा है. फॉरेन में तो ड्राइवर वो डॉलर्स के हिसाब से, या आप यहाँ पे भी देख लो, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. बट अगर ड्राइवर की जरूरत ही ना हो, 4-5 फोन हमें अभी भी करने पड़ जाते हैं कभी ड्राइवर चाहिए हो ना कहीं जाने के लिए दूर. लेकिन अगर कार ही ड्राइवरलेस है, अगेन डिबेटेबल, जॉब खत्म हो जाएगी. तो वो बंदा कुछ और काम करे ना. ड्राइवर अच्छी चीज़ है, अगर आप ड्राइविंग इंजॉय करते हो, पर कुछ और भी तो कर सकते हैं. उस टाइम पे ड्राइविंग तो नहीं जरूरी थी. इज़न्ट इट? और अगर आप नहीं करना चाहते, बजाय कि आप अपनी आंखें टिका के सामने देखी जाओ, आप उस टाइम पे कुछ पढ़ सकते हो. मे बी आप उस टाइम पे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो पीछे बैठे लैपटॉप खोल के. सो ये नहीं है कि आप फ्री हो गए, आप ड्राइविंग से फ्री हुए हो, जॉब से फ्री नहीं हुए. सो हु helps us in comprehending and categorizing who all are affected? What helps us in understanding what is the problem? प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, भी सॉल्व करने लग गए. एंड वेयर, कहाँ पे हो रही है, और वाई, कि ये कुछ फायदा करेगी. इज इट वर्थ सॉल्विंग? तो बेसिकली क्विकली गोइंग थ्रू इट रिक्वायर्स 2 steps. हम भी ड्राइविंग कैसे सीखते हैं? हाउ डू वी लर्न? चलाते हो आप लोग बाइक, सीधा चलाते, पैदा तो नहीं चलाते हुए थे. किसी को मारा भी होगा, ठोका भी होगा, खुद भी गिरे होंगे, चोट भी लगवाई होगी. कोई पीछे अगर सिखा रहा होगा, उसने सिर पे हाथ भी मारा होगा, की करिए ना यार, ब्रेक करनी सी तो रेस देती. व्हाट इज इट? लर्निंग. इट इज कॉल्ड ट्रेनिंग. ये ऑटोमेटिकली हो रहा है बिकॉज भगवान ने ना हमें देन बहुत अच्छी दी है. हमारे आगे कोई मक्खी मच्छर आ जाए ना, हम आंखें बंद कर लेते हैं एकदम से. कोई ऐसे हाथ भी करे, हम एकदम से रिएक्ट कर लेते हैं. क्यों? व्हाई? बिकॉज वी आर equipped with a super intelligent brain. और हमें पता है अगर नहीं करते थे तो, अगर कोई थप्पड़ मारा था, अगर हमने अपने आप बचाव नहीं किया तो लगी थी ना जोर से. अगली बार थोड़ी ऐसे मुंह उठा के बैठ जाओगे कि एक और थप्पड़ लगे दूसरी तरफ. सो और ये ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग करने के बाद है ना. अब क्रिकेट में आप देखते हो आजकल आईपीएल सारे देख रहे हैं, विपर चल रहा है, सूर्य कुमार यादव रिवर्स स्कूप मारता है ना. क्या किया उसने? ये तो कभी भी नहीं होता था ऐसे. बुक में तो लिखा ही नहीं था ऐसे मारनी थी शॉट.
वो ऐसे करके पीछे को मार देता है, वहाँ फील्डर नहीं होता। बहुत ट्रेनिंग की उसने। फिर बॉलर देखने शुरू हो जाते हैं कि यार ऐसी बॉल पे तो ये ऐसे कर रहा है, वो कुछ नई बॉल डाल के देखते हैं, फिर भी वो कोई एंगल लेके अगर मार लेता है तो उसका नाम रख दिया मिस्टर 360 डिग्री। यार सामने खेलना होता है, पीछे खेलिए अंदर। फिर बॉलर उसको टेस्ट करते हैं, लॉबी डाटा देके और बॉल पाके देखो हुन करता है। वर्ल्ड कप में उसको थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया था कंट्रोल, जिसके कारण अनफॉर्चुनेटली हम एक मैच हारे। देखा था वो पेस यूज कर रहा था, उन्होंने उसके लिए उसने ट्रेनिंग नहीं ली होगी मेरी। अगर उसको वैसी ही बॉल्स आती तो उसने उसको भी डाला, उन्होंने स्लो डालनी शुरू कर दी। देखा था उन्होंने बॉल्स थोड़े स्लो बाउंसर डाले, पेस मिल नहीं रहा था, पीछे हो या तो बॉल मिस हो रही थी, जा नहीं रही थी। लेकिन हमने क्या करना, अगर हम गेम बनाएंगे ऐसी रिवर्स वगैरह, तो हमने ऐसा बनाना कि हमने उस बैट्समैन को ट्रेन किया हो, उसी में से उसको बॉल्स डालें, वो खेल पाए। लेकिन अगर कुछ नया भी आ जाए ना, अगर कहीं उसने उस पर भी शॉट मार दी, वो है हमारी सक्सेस। ये है यही सिस्टम। समथिंग जिसके लिए आप ट्रेंड भी नहीं थे। तो ये डाटा जो है इट इज, उसकी वॉल्यूम, वैरायटी और वेरासिटी बहुत ज्यादा है। और सोर्सेज क्विकली गोइंग थ्रू आर वेब स्क्रैपिंग। हमें कहां से, हम भी देखते रहते हैं वेब स्क्रैपिंग, सेंसर्स, कैमरास, एपीआई, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, ये सारा क्या कर रहे हैं, डेटा बढ़ाई जा रहे हैं, डेटा बढ़ाई जा रहे हैं। लेकिन हमारी एक कैपेसिटी है, हम दो चीजें अब आपको प्रैक्टिकल के दौरान अगर ये पूछना शुरू कर दिया तो उसमें ही आप क्या हो गए, बॉग डाउन हो जाओगे। व्हाई? ऑल्दो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव ए वेरी डेवलप्ड ब्रेन, न्यूरॉन्स अपने सब काम कर रहे हैं, बट यू हैव ए लिमिटेशन, यू कैनॉट वर्क ऑल एट वंस। बट मशीन के लिए ये रिस्ट्रिक्शन कुछ ही नहीं है, बिकॉज उसकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा है। इट इज एबल टू परफॉर्म मिलियन ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ए सेकेंड। सर्च करना, ढूंढना, ये बंदा मैंने देखा लगता है। कल ही मेरे पास एक लड़का आया था, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, मैंने उसको पहचान तो लिया, पर मैं ये नहीं बता पाया यार तू देखा जरूर है। कंप्यूटर को देखा है तो FBI का अगर आप देख रहे होते हो प्रोग्राम, साथ में आता है फलाने ने काम किया सी फालतू ने, हमें थोड़ा उतनी देर में मुझे वो चकमा देके चला जाएगा। लेकिन कंप्यूटर ने तो बीप करना शुरू कर देना कि सम रॉन्ग पर्सन, एयरपोर्ट्स वगैरह पे ये चीजें यूज होती हैं। तो ये है सोर्सेज। तो उनको एनालाइज करके, क्लीन करके हम इस फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं कि सूर्य कुमार यादव या रोहित शर्मा को शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल डाली, इस पॉइंट पे डाली, उसने इतने स्कोर किए, स्पिनर ने डाली, उसने ये किया, पेसर ने डाला, उसने वो किया, अब क्या करें। तो उनकी जो टीम इतनी IPL की बैठी होती है, स्टडी करके अगले दिन वो वाले बॉलर टीम में रख के उनको, पीछे तो इंटेलिजेंस कोई काम कर रही है ना। वो एक बंदा कितना याद रख लेगा हर प्लेयर के बारे में, कंप्यूटर तो रख लेगा ना। तो यहाँ पे ग्राफिक GPU भी यूज होता है। उसको मॉडल करने के बाद हम बनाते हैं मॉडल। तो AI के जो मॉडल्स हैं बेसिकली टू टाइप्स के हैं। वी विल टच अपॉन द लर्निंग बेस्ड मॉडल्स। One is rule based model. Anybody who knows about rule based models? Who knows about rule based models? Quickly. कोई रूल फॉलो करते हो? ट्रैफिक लाइट ग्रीन पे रुकते हो? कहते रुकते हो, मैं ऐसा करता है इसका कि चलते हो ग्रीन पे, रेड पे रुकते हो, वो फ्लो च ना रहा करो हमेशा, समझे? तो वो रूल है, रेड है रुक जाओ, ग्रीन है चल पो। वैसे कई जने वो बे नहीं करते, ठीक है, कई जने वो बे नहीं करते, बट वो तो रूल पहले से है। इफ दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट। बट हमारा लर्निंग बेस्ड मॉडल क्या है? व्हाट इज लर्निंग बेस्ड मॉडल? लर्निंग बेस्ड मॉडल रिवर्स है। हमने डाटा से बीच में से रूल निकाले कि अगर ये होगा तो ये होगा। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सब कुछ वो बन जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, बारिश होगी या नहीं होगी। और लर्न करना डाटा से, और जितना ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा उतनी हमारी प्रिडिक्शन एक्यूरेट होती जाएगी। तो अगर ट्रैफिक लाइट भी इंटेलिजेंट बना दे, वो लर्न करके नए रूल बनाए, और वो जो ग्रीन लाइट 15 सेकंड के लिए हो कि 10 सेकंड के लिए हो कि 5 सेकंड के लिए हो, नए रूल्स डिफाइन हो। नहीं तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी उनका तरीका है, अगर कहीं वो ऐसा कर पाए कि जहां वो देखे किधर इस टाइम पे ट्रैफिक यहाँ होती है, यहाँ होती है, और डायनेमिकली वो रूल चेंज हो जाए, नथिंग लाइक दैट। समटाइम्स वी फील इट कि एक रोड तो होती है मेन GT रोड वाली, एक साइड रोड होती है जैसे फुटबॉल चौक में है, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, इधर ज्यादा फ्लो रहता है, इधर कम होता है,
पर वो देते बराबर का ही टाइम है, तो वो भी एट अ टाइम ऑफ अ डे डिफरेंट है। अगर ये कहीं हो जाए मैनेज एल्गोरिथम कुछ रन करे और लर्न कर ले, जैसे ट्रैफिक सिग्नल वाला कई बार वो कर देता है ना, सिग्नल रेड भी होगा कहना आ जाए, क्यों? क्योंकि लाइन इतना लंबी लगी हुई। तो ये हमारी अगर मशीन करे तो हम उसे क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, इजंट इट? तो ये होगी रूल बेस्ड अप्रोच, ये मैंने आपको बता दिया। पहले से ही डाटा और आंसर बता देंगे, पहले से ही इनपुट भी पता है और आउटपुट भी पता है, उसमें से रूल निकालने हैं। बता दिया, समझा दिया, उसके बाद उसको कोई रैंडम सी इनपुट देके देखना कि क्या अब ये रिजल्ट ठीक शो करती है। अगर तो अब भी रिजल्ट ठीक है, इसका मतलब लर्निंग हो गई, उसको समझ आ गया। एम आई गेटिंग इनटू यू? समझ आ रहा है कुछ? तो ऐसे सिस्टम बहुत स्कोप है, कई जगह पे ये बन सकता है। अलेक्सा, सिरी, व्हाटएवर वो बन चुके हैं, हम कुछ नया बनाएं। तो ये इवैल्यूएशन है, वो तो चलो एक्यूरेसी हुई नहीं हुई। अब हम आते हैं एआई, एमएल और डीएल पे। ये कोई बता सकता है? कईयों ने तो एआई की वैल्यू एडेड कोर्स भी किया था। जल्दी, एआई, एमएल, डीएल। व्हाट इज एआई? हाँ तो मुझे पता फुल फॉर्म है, बट आपकी इंटेलिजेंस डेफिनेशन पूछ रही है। एआई इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज which are based upon computer programs, और वो हमें कुछ आंसर बताएंगे। और मशीन लर्निंग क्या है? इट इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल। कंप्यूटर पे कुछ काम दो, निकलना, वो इंटेलिजेंस से होना है। लेकिन मशीन लर्निंग क्या है कि लर्न करके अगर उसने प्रिडिक्ट कर दिया, हमने उसको कोई प्रॉब्लम्स दी, उसने प्रिडिक्ट कर दिया। और डीप लर्निंग क्या है? जब उसने न्यूरल नेटवर्क, जैसे हमारे अंदर है ना न्यूरॉन्स, उसने न्यूरल नेटवर्क्स यूज करके, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करके, एडजस्टमेंट करके, ट्रेनिंग करके अपने आप को बेटर कर लिया वर्किंग अराउंड एल्गोरिथम्स। और बहुत एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं पाइथन वगैरह में जो आप यूज कर सकते हो ताकि आपका सिस्टम कंटिन्यूसली इवॉल्व करके बेटर परफॉर्म करे। तो ये आई विल जस्ट स्किप। ये लर्निंग है, कितने तरह की होती है? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग? जैसे मैं आपको कह रहा था ग्रीन लाइट पे हम रुक जाएंगे, आप ऐसे कर रहे हो, है ना? तो ऑब्वियसली आप ग्रीन लाइट पे रुक जाओगे क्योंकि मैंने आपको बताया था। लेकिन ग्रीन लाइट पे अगर मैं कहता नहीं ग्रीन पे चलना, क्या आपका फॉरेन कंट्री में ग्रीन पे रुकते हो, रेड पे जाते हो, क्या बताओ? तो वो लेकिन किसी ने आपको सुपरवाइज किया। क्या? छोटे होते बच्चे को क्या बताते हैं? ए फॉर बनाना तो नहीं कहते, तो बच्चा भी वही कहता है, ए फॉर एप्पल। ऑब्वियस है, वो सुपरवाइज। तो हम कंप्यूटर को कैसे बताएं कि ये एप्पल है? कैसे बताएं? वो टोकरी नजर आएगी ना। पता हो छोटे होते ना, मेरी बेटी गई थी स्कूल में एडमिशन लेने, उन्होंने आर्टिफिशियल ऐसे मतलब फ्रूट्स टिकाए हुए थे, पूछा था व्हाट इज दिस, क्या मतलब है? क्यों की पूछा था? इतने छोटे बच्चे को क्यों पूछने की जरूरत है? कितने साल में जाता है स्कूल बच्चा? 5 फॉरन च जाता। इतने 3 जी 2.5 जी पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं भेजो, ABC अद्धी घर ही सिखाई होंगी। वो मैडम पूछन लग पई एप्पल, ते ਅਸੀਂ बड़े खुश होने, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਐਪਲ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 2.5 ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਐप्पल, पेरेंट्स ਐ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ एप्पल। कैसे पता चला? हाउ? ट्रेन किया था। ट्रेन किया था कैसे? कि ये रेड होता है, ये गोल होता है, ऊपर डिप्रेशन डंडी होती है। यही कंप्यूटर को समझाना। इफ यू हैव समथिंग व्हिच इज, इधर लिखा है ना, if the shape of the object is rounded, सुनो, and if conditional आनी आती है तानू, and has a depression at the top, is red in color, it will be labeled as apple। क्योंकि कंप्यूटर बच्चा अखा उठा नहीं है, कंप्यूटर देख के दस दूंगा, आप कैरेक्टर्स देखेगा। बनाना एक्सप्लेनेशन सही है, ग्रीन येलो सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। उन्हें कुछ एप्पल मैंने दिखाए होंगे, कुछ बनानास भी दिखाए होंगे। उसको अगर उसी बास्केट में से एक बनाना उठा के पूछूंगा कंप्यूटर से कि ये क्या है, तो वो क्या उसको बोलना चाहिए? बनाना। अगर उसने एप्पल बोल दिया, खत्म, फिर तो यार बेकार है कंप्यूटर, बेकार।
बेकार ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਐਪਲ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਭਰਾਓ ਤਰਬੂਜ ਆ ਦੇਖਾਂ ਸਕੂਲ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਡਾਰਕ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਆ ਗਗਨ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਡਾ मिशन फतेह क्योंकि मैं तो दस ही देना सी ये भी तरबूज मैं खरबूजा थोड़ी कहना सी कंप्यूटर ने भी उसको क्या बोलना चाहिए था वाटरमेलन नॉट रॉकमेलन सो दिस इज द सक्सेस थ्योरी जो इवैल्यूएशन वाला प्रोसेस था तो ये सुपरवाइज लर्निंग दो तरह से होती है एक होती है क्लासिफिकेशन एक होती है रिग्रेशन आपने की है न्यूमेरिकल मेथड लीनियर भी मल्टीपल के किए हुए हैं चीज यही यूज होंगी हम कहते हैं ना हम न्यूमेरिकल मेथड क्यों पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं ये एआई में भी यूज होती है ओके तो क्लासिफिकेशन तो सिंपल था ना एप्पल और ऑरेंजेस क्लासिफिकेशन अगर लीनियर रिग्रेशन अगर पहले 5 ओवर में वो क्या नाम इतने स्कोर बने हैं तो मुंबई इंडियंस के या सनराइजर हैदराबाद के 15 ओवर बाद प्रोजेक्टेड स्कोर क्या होगा वो तो बेस्ड रिग्रेशन पे ही है ठीक है तो मैथमेटिकल इक्वेशन आती है बीच में अनसुपरवाइज्ड है मजेदार व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड जब मैंने सुपरवाइज भी नहीं किया सिखाया भी नहीं आप लोग तो स्कूल से जब आते हो आपको यही होता है कि इतने भी सारा कुछ ना टीचर दसी जाए दसना भी चाहिए था फर्स्ट ईयर दसते भी हैं प्रोजेक्ट में तक आपको जो लर्निंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए अनसुपरवाइज मतलब खुद मैंने ना एप्पल दिखाया उसको ना मैंने बनाना दिखाया लेकिन टोकरी में रख दिया ठीक है तो अगला एग्जांपल ऐसा करते हैं कुत्ते बिल्लियों का एप्पल बनाना बहुत कुछ हो गए इसमें ये देख रही है इमेज आप कर लोगे इसको थोड़ा बहुत कैटेगराइज कर लोगे कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्लियां हैं मैंने बताया नहीं है कंप्यूटर को मैंने पहले भी अपने फर्स्ट ईयर में कई मेरे स्टूडेंट होंगे कंप्यूटर बेचारे में सिर्फ 0 और 1 पता है उनको कुछ नहीं पता तो कुत्ते बिल्लियां के दो रास्ते how can it tell whether it's a dog or a cat based upon similarity it will be able to classify it in between cats and dogs based upon their features वो clustering होती है आप भी like minded यहाँ आपको बिठाया गया आप इकट्ठे बैठ गए क्लस्टर में दोस्त मित्र इकट्ठे बैठ गए इतना हो गया कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी थिंकिंग की whatever तो उस बेस पे वो क्या होती है क्लस्टरिंग एसोसिएशन कस्टमर जिसने ब्रेड खरीदी उसने मक्खन भी खरीदा बताया नहीं था पर ऐसे होता है उसने जैम भी खरीदा डायमेंशनलिटी रिडक्शन कई बार एक प्रॉब्लम बहुत टफ होती है बहुत ज्यादा डायमेंशन होती हैं हमने क्या करना है उसमें से जो बेकार की चीजें हैं ना वो निकाल देनी है और ये बहुत अच्छी तरह होता है डिजिटल टेक्नोलॉजी में तो बहुत अच्छी तरह कि हमें गाना सुन रहा है बीच में नॉइज आ रहा है या उसको अलग कर दो तो समझो डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्योंकि उसकी यूज ही नहीं थी कोई हमें गाना नहीं क्लियर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन सुनिए ना हेडफोन पे आती है तो तीसरी है रीइंफोर्समेंट अगर मैं आपको अच्छा काम करो आपकी पीठ पे जोर से थापी मार दूं ना आप उसकी बाद और अच्छा काम करो और अगर आप गलत करो तो मैं आपको पनिश करूं चाहे मुंह जवानी या थप्पड़ मार दूं तो आप वो रिपीट नहीं करोगे isn't it this is called reward based learning बच्चे को अच्छे काम पे इंकरेज करो गलत पे डिस्करेज करो अल्टीमेटली बच्चा विल टर्न आउट टू बी ए वेरी गुड सिटीजन तो ये गेम है वो डायमंड तक पहुंचना है रिवार्ड है विच फायर है ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ खेली नहीं कभी हो जाता है ऐसे डायमंड पे आगे उसको रिवार्ड नेक्स्ट टाइम जब वो मूव करेगा ना उसका पाथ उसी हिसाब से आएगा कि डायमंड मैंने जल्दी कैसे लेना राइट दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स बेस्ड दिस इज आल्सो लर्निंग आप भी साइकिल पे बार बार गिरते ही थोड़ी रहते हो गिरते रहते हो थोड़ी सी डांट पड़ती है हैंडल भी छोड़ दिया ब्रेक एकदम से भी लगा दी डांट पड़ती है फिर जब चला लेते वेरी गुड शाबाश हौली हौली ट्राई व्हील्स खत्म बैलेंस बराबर रीइंफोर्समेंट अच्छा लास्ट टॉपिक न्यू टॉपिक टेक्नोलॉजी डे पे कुछ तो बात कर लें तो ये है जनरेटिव प्रोनाउंसिएशन जरा डिफरेंट है शॉर्ट फॉर्म है GAN जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क सुना है एक टेक्नोलॉजी तो नहीं पता क्या होता है जनरेटिव एडवर्सेरियल
नेटवर्क्स। पहले हम बात कर रहे थे डीप लर्निंग में एक न्यूरल नेटवर्क होता है, सो इट इज ऑब्वियसली ए काइंड ऑफ डीप लर्निंग आर्किटेक्चर, बट इट इज बेस्ड अपॉन टू न्यूरल नेटवर्क्स एंड टू न्यूरल नेटवर्क्स आर कंपीटिंग विद ईच अदर। और मुझे बताते बताते ये लगा हमारे ब्रेन में भी ऐसे चलता रहता है। एक हमें कह रहा होता है ये काम करो, एक मुझे कह रहा होता है नहीं ये है, एक कह रहा था नहीं ये गलत है, एक कह रहा होता है नहीं ये सही है। तो मैं अपने एक ब्रेन से दूसरे को एक द्वंद चलता रहता है अंदर, तो ये ऐसे ही इनके दिमाग में भी आया होगा। तो ये आई विल टेक अप एन एग्जांपल ऑफ इमेजेस कि ये टू न्यूरल नेटवर्क्स हैं। तो एग्जांपल ये है कि एक बंदे जब आजकल आप सुनते हो डीप फेक, सुनते हो, गलत बातें भी आती हैं इंटरनेट पे। डीप फेक है, मैं स्पेक्स लगाता हूँ, सपोज करो मैं स्पेक्स नहीं लगाता और मेरे फोटो एक आ गई जिसमें स्पेक्स लगी हुई है। आपकी इंटेलिजेंस जिसने मुझे देखा होगा वो कहेगा सर तो लगाते ही, ये फोटो नकली है, हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी लुक स्पेक्स में है क्योंकि मैं लेंसकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूं। आपको क्या लगता है जितने सेलिब्रिटी जितनी ऐड दे रहे हैं वो सारे खुद फोटो खिंचा रहे हैं? अब भी बीच में एआई यूज हो रही है, ऐसे ही करी जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो न्यूरल नेटवर्क्स हैं कंपीटिंग विद ईच अदर, और पॉसिबिलिटी एक ने कहना कि तू गलत है, एक ने कहना है कि तू गलत है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। इसमें होता क्या है, एक जनरेटर है, देखो जरा डायग्राम, एक जनरेटर है और एक डिस्क्रिमिनेटर है। यहाँ कोई रैंडम इमेज आई, वो फेक थी, मेरी कोई फेक इमेज आ गई। डिस्क्रिमिनेटर ने चेक किया कि ये फेक है कि रियल है, यस या नो आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेटर ने पता कर लिया कि ये फेक है, समझ रहे हो, अगर डिस्क्रिमिनेटर ने पता कर लिया कि ये फेक है तो कौन जीता? जनरेटर ने एक इमेज रैंडमली जनरेट कर दी, वो कहता है कि ये फेक है, तो कौन जीता? डिस्क्रिमिनेटर। तो क्या होगा? जनरेटर की लॉस। फिर एक फीडबैक जा रही है कि जनरेटर भाजी अपने आप में इंप्रूव करो, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਲ ਹਸਨ ਨੂੰ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੈ नहीं। इतना शो करो कि यदि बॉडी जितना शाहरुख खान, पता नहीं इतनी बॉडी है कि नहीं, हमें तो ऐसे नजर आते हैं 6 कैप्स। अगर डिस्क्रिमिनेटर नहीं कर पाया आइडेंटिफाई कि ये ओरिजिनल थी कि ये फेक है, तो कौन जीता? जनरेटर। तो फिर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटर अपने आप को इंप्रूव करेगा ताकि मैं फेक को रिकॉग्नाइज कर सकूं। इंटरनेट पे है ना फेक और रियल, तो दिस इज ए वॉर। पर ये वॉर नुकसान के लिए नहीं है, किस लिए? फायदे के लिए। क्योंकि होता क्या है, दोनों एक दूसरे को अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? इंप्रूव कर रहे हैं। जनरेटर डिस्क्रिमिनेटर को और डिस्क्रिमिनेटर जनरेटर को। तो ये है कुछ कि ये कैसे काम करता है। ये एक एग्जांपल है, आप इसको रीड कर सकते हो, सनग्लासेस वाला, ठीक है। ये ऐनक लगा के पता किया कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है, उसने ईयर आइज मैच करके देखना, नहीं ये जबरदस्ती ऐनक लगाई हुई है। विराट कोहली को तो ऐनक लगी ही नहीं हुई, पर उसने ऐड देनी है लेंसकार्ट की तो उसको लगानी पड़ी, पर ओरिजिनली नहीं लगी हुई। अगर ये अल्टीमेटली जनरेटर एक ऐसी इमेज जनरेट कर पाया कि पता ही ना चल पाए कि ऐनक हमने पहनाई थी कि उसने खुद पहनाई थी, देन इट विल बी सक्सेस ऑफ जनरेटर एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। इतना बहुत है, अब आपने वाइवा भी देना है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू विशाल सर फॉर सच एन एलेबोरेटिव लेक्चर। कल आप सब लोगों के लिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि सर एक लेक्चर होना चाहिए और टेक्नोलॉजी डे पे होना चाहिए और कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी ज़रूर बता के चलो। एंड आई गेस यू ऑल आर गोइंग टू बी पास आउट दिस ईयर, अगर किसी की सप्ली नहीं आती तो ठीक है। और आने वाले दिनों में आप लोगों ने आगे क्या करना है, वी हैव द काउंसलिंग सेल ओवर हियर, आप लोग हमसे आके डिस्कस कर सकते हो। इस कॉलेज में एडमिशन या कहीं किसी और कॉलेज में एडमिशन, कौन से कोर्सेज बेटर हैं, कौन से नहीं हैं, किस जगह जाना है, किस जगह नहीं जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, कभी भी आप लोग आ सकते हो, डिपार्टमेंट के किसी भी टीचर से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।
भी शुरू